العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین در اللہ المقرون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدة والعیون عالم ما کان وما یکون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے اس پاکیزہ محفل میں شرکت کا موقع حسب سابق پھر فراہم کیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت خواجگان ڈھانگری کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور حضرت صاحبزادہ پیر محبوب الرحمن حبیب الرحمن محبوبی دامت برکاتہم العالیہ ان کے علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس انداز سے وہ دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی مسائی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے لوح محفوظ سے اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور کتاب کا علم اسی کے پاس ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے کئی اوقات ہم کو ایسے عطا کیے کہ جو انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے عام ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ شب قدر ہے، شب برات ہے، جمعے کی ساعت ہے، عرفے کا دن ہے۔ اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، سوالیوں کے سوال پورے ہوتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان میں خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ جس کی پہلی نظر پر اللہ کریم دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حجر اسود کے پاس جائیں، رب تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ مطاف میں رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مقام ابراہیم پر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صفا اور مروہ پر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روضہ انور وہ مقام ہے جہاں جو بھی سائل جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اے حبیب، اگر یہ آپ کے امتی اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیں، پھر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے معافی مانگے، آپ کے بھی ہاتھ ان کے لیے اٹھ جائیں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے۔ آپ کے پاس آنے سے قبل ہو سکتا تھا کہ اللہ کو غضب میں پاتے،
कहर में पाते, लेकिन ए हबीब जब आपकी बारगाह में आ गए तो फिर अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमा ही लेगा। मुझे एक बात याद आ गई, जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई, एक अराबी आया और उसने सुन रखा था। जब ये आयत करीमा को सुना पढ़ा तो कहा चलो जुल्म तो बहुत किए हैं, आका के पास चलते हैं, माफी मिल जाएगी। जब मदीना तैयबा की गलियों में आया तो वहां से पता चला कि हुजूर ने तो पर्दा फरमा लिया, दिल टूट गया। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके रोजा अंबर पर आया और खाक उठाकर सर में डालता है और एक शेर पढ़ता है, या खैर मन तुफिनत फिल काए आज़महु फताब मिन तीबिहिन्नल काव वल अकबु नफ्सी फिदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल इफ़ाफ़ु व फीहिल जूद वल करमु। थोड़ी सी बात यहां ये भी अर्ज करता जाऊं कि जिस वक्त आप रोजा अनवर के सामने जाते हैं, मुआजा शरीफ के सामने जाते हैं, तो वहां पहले या अल्लाह हो या मोहम्मद लिखा हुआ था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने पता नहीं इनको हुजूर के नाम के साथ या के साथ क्या मुखालफत है, इन्होंने या मोहम्मदों को मिटाकर या मजीदो बना दिया। और देखिए मेरे आका, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं या मजीदों से, अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है, हमें तो वो मंजूर है। लेकिन सरकार दो आलम के नाम के साथ को मिटाना, ये तो कोई सैयदना ये मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें कि जब आप हुदैबिया के मुकाम पर मुआहिदा लिख रहे थे तो उन्होंने लोगों ने इतराज किया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आप लिख रहे हैं, लफ्ज़ रसूलुल्लाह से हमें तो इख्तिलाफ है, इसको काटो। आपने हुक्म दिया अली मुर्तज़ा को कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दे और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दे। अली मुर्तज़ा ने अर्ज किया, आका मेरा ये ईमान गवारा नहीं करता कि जिसको रसूल मान लूं फिर उसको मिटा दो, हो ही नहीं सकता। अगर ये भी है तो ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के नाम को मिटाना ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। लेकिन मेरे आका का करम देखिए, इस शेर में भी लफ्ज़ या मौजूद है, या खैर मन तुफिनत। सरकार को मुखातब करके वो कहता है कि ऐ उन सब लोगों से बेहतर जो इस जमीन में दफन है, जिनकी खुशबू से पूरा मदीना मुनव्वरा और पहाड़ खुशबूदार हो गए हैं। मेरी जान इस कब्र अनवर पर कुर्बान, जिसमें जूदो सखा दफन है। ये आप मुआजा शरीफ के पास जाएं, हमको तौफीक रब तआला अता फरमाए। या अजान के वक्त आप देखें तो ये शेर एक सतून पर लिखा हुआ है मुआजा शरीफ के दरमियान, और दूसरा शेर दूसरे सतून पर लिखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, चलो सामने से मिटा दिया है लेकिन साथ तो नहीं ना मिटा सकते। ये आपकी आज भी मौजूद है। तो ये वो मकाम है कि जहां दुआएं कबूल होती हैं। अराबी चला गया, सरकार दो आलम सैयद अली मुर्तज़ा को ख्वाब में मिले, फरमाया अली हमारे पास साइल आया था, जाओ उसको जाके कह दो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, उसकी बख्शिश फरमा दी। ये वो मकाम है। एक बात और अर्ज करता जाऊं, मैं वैसे खड़ा हुआ था हरम शरीफ में सरकार दो आलम के कदमैन शरीफैन की तरफ, तो वहां एक मुतब्बा जो है वो कह रहा था, हम भी हजूर पाक की शफाअत के कायल हैं, आपकी शफाअत को हम भी मांगते हैं, हम इकरार करते हैं, लेकिन यहां नहीं मांगनी चाहिए, अगले जान जाके मांगेंगे। आपने देखा होगा आज अल्लाह के बंदो, दारुल अमल ये दुनिया है, आखिरत तो दारुल जज़ा है, वहां तो बदला मिलना है। इसीलिए तो आला हजरत ने कमाल करके फरमा दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अगर उनसे इस्तिगासा करना है, इस्तिमदाद करना है तो आज करो, उनसे शफाअत मांगनी है तो आज मांगो। मौलाना रूम ने फरमाया, एक शख्स महमूद गजनवी रात को गश्त के लिए निकला, देखा कि 4 चोर बैठे हुए,
पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम चोर हैं। तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं भी चोर हूं। यार मुझे अपने साथ शामिल कर लो, इकट्ठे मिलकर चोरी करेंगे। उन्होंने कहा पहले अपनी खूबी तो बताओ, तुम्हारा कमाल क्या है? उन्होंने कहा तुम अपने कमाल बताओ ना पहले मुझे। उनका सुनो, एक बोला। उसने कहा मेरा कमाल ये है कि जब हम चोरी के लिए जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो मैं पहचान जाता हूं कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। उनका ये तो बड़ी अच्छा कमाल है। दूसरे को पूछा तुम्हारा क्या कमाल है? उसने कहा मेरा कमाल यह है कि दीवार कितनी भी बुलंद हो, उस पर जो है मैं कमांड डालता हूं, खुद भी चढ़ जाता हूं, दूसरों को भी चढ़ा लेता हूं। उनका ये भी अच्छी बात है। तीसरे को पूछा तुम्हारा क्या कमाल है? उसने मेरा कमाल यह है कि मैं उनको बता देता हूं खजाना फलां जगह है, वो उसको लूट लेते हैं। चौथे को पूछा तुम्हारा क्या कमाल है? उसने कहा मेरा कमाल यह है कि रात की तारीकी में अगर किसी को देख लूं, सुबह की रोशनी में उसको पहचान लेता हूं कि ये रात वाला शख्स है। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम भी अपना कमाल बताओ ना। उसने कहा मेरा कमाल यह है कि बंदा फांसी पर चढ़ रहा हो तो मैं ऐसी दाढ़ी हिला दूं ना तो वो छूट जाता है। उनका ये तो बड़ी अच्छी बात है, फंसना तो हमने है ही ना, चलो छुड़ा तो लोगे। चलो जी आज महमूद गजनवी के घर डाका डालना है। चल पड़े, कुत्ते भौंके। उनका बताओ भाई ये क्या कहते हैं? उनका ये कहते हैं कि बादशाह थोड़े विचे ये महमूद गजनवी तुम्हारे दरमियान ही है। उन्होंने कहा क्या करते हो, वो दिमाग खराब है, वो तो बादशाह है और ये चोर है, हमारे साथ अभी शामिल हुआ, ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं वही है, मेरा इल्म ये कहता है। गया चलो भाई दीवार पर कमांड डालो। महमूद गजनवी के घर कमांड डाली जा रही है। अब महमूद गजनवी भी उनके साथ है ना, उनके साथ ही दरवाजे से नहीं, गेट से नहीं, प्रोटोकॉल से नहीं, उसी कमांड के साथ अपने घर में जाता है। वो खजाने वाला, खजाना बताने वाला, वो खजाना बता देता है फलां कमरे में है, वो लूट लेते हैं। डिवीजन हो गई, सारी तकसीम हो गई। महमूद गजनवी कहता है पत्रे दे दो ताकि कल फिर इकट्ठे हों तो हम जो है वो चोरी करने के लिए जाएं। सबके पते ले लिए, जिस वक्त एड्रेस ले लिए, चले गए अपने घरों को। सुबह हुई तो शोर पड़ गया, महमूद गजनवी के घर ही डाका पड़ गया, तो बाकी कौन बचेगा? ये हमारी हिफाजत कैसे कर सकेगा? महमूद गजनवी ने कहा चलो ये चोर हैं, इनको पकड़ के ले आओ। चारों को ले आए। अब वो आ रहे हैं, महमूद गजनवी तख्त पे बैठा है, तो वो जो कहता था ना मैं हाथ को देख के सुनो बता देता हूँ, उसका अभी काम बाकी रहता था। वो देखते गए रात वाला ये वही है। उनका अब फंसाओगे, वो तो चोर था, ये तो महमूद गजनवी बादशाह। उन्होंने कहा नहीं मेरा इल्म यही कहता है ये वही है। मुकदमा हुआ, ट्रायल चला, उसने डिसाइड कर दिया कि इनको फांसी दे दो। अब जाते जाते जब वो फांसी चढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो पीछे मुड़ के कहता है अब दाढ़ी हिला दो कि उस वक्त लाओगे जब फांसी चढ़ जाएगी। महमूद गजनवी दाढ़ी हिला देगा, वो फांसी चढ़ने से छूट जाएगी। मौलाना रूम ने नतीजा निकाला कि सरकार दो आलम आए हमारे साथ ही, हम में ही शामिल है। आप हमारे काम हमारी तरह किए हैं, दीवार पर भी तो चढ़े थे, सारा कुछ हमारी तरह ही आपने किया, शादियां की, खाया पिया, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, लेकिन आपकी अजमत और शान ये कल क़यामत के दिन पता चलेगा। जो पहचानने वालों ने पहचान लिया था, जब कोई आदमी आपका उम्मती दोज़ख को जा रहा होगा तो आप ऐसे मुड़ के हाथ अपनी दाढ़ी मुबारक हिला देंगे, उसकी जान छूट जाएगी।